Assalamu alaikum children. Today we will start revision of chapter 8, that is organic chemistry. Okay, organic chemistry is the chemistry of chemical compounds. Okay, that were mainly considered to be originated from living beings. Earlier they were considered to be originated from living beings. Now they can be synthesized in the laboratory as well. Okay, now Lavoisier classified substances into organic that are from vegetable and animal origin, and inorganic that are from रॉक्स एंड सॉल्ट्स. ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम रॉक्स एंड सॉल्ट्स एंड मिनरल्स एटसेट्रा. ठीक है, बर्जीलियस स्टेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मीन्स अ लिविंग बींग is must for the synthesis of organic compound. A living force or a vital force is necessary for producing organic compounds. But Wohler first proved the natural vital force theory wrong by synthesizing urea in the laboratory. Urea is an organic compound. Okay, and Wohler synthesized it in the laboratory, that is artificially in the laboratory, from inorganic compounds. Now the formula for urea is NH2CO NH2. Okay, NH2 C double bond O NH2. This is urea, or you can write it as NH2 CO NH2. Okay, now hydrocarbons. Organic chemistry is the chemistry of specific carbon compounds. अब इसमें कार्बोनेट्स कार्बाइड्स नहीं आते हैं. ठीक है, कार्बोनेट्स कार्बाइड्स जो होते हैं दैट इज मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल कार्बाइड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक, उसके अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं ज़्यादातर कम अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, एग्जाम्पल इज हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. एग्जाम्पल इज मीथेन, इथेन, इथीन एंड इथाइन. Natural sources of organic compounds are plants and animals as well as coal. Importance of organic compounds. Organic compounds are found in food, that is carbohydrates, dyes, azo-dyes, clothing, cotton, fabric is organic compound. Fuels, petrol. Petrol consists of hydrocarbons at the major constituent. Medicines, example is penicillin. Okay, now unique nature of carbon atom. Unique nature of carbon atom. First is tetravalency of carbon atom. Carbon atom is tetravalent, means it can accommodate 4 more electrons in order to complete its octet. Okay, now carbon's atomic number is 6, hence its electronic configuration will be 2,4. So it is short of 4 electrons in order to complete the octet to attain a stable noble gas configuration of the nearest noble gas, that is neon. ठीक, carbon has 4 electrons. Carbon forms 4 covalent bonds by mutually sharing its 4 electrons with other atoms. Carbon is hence tetravalent or exhibit tetravalency. Now catenation. What do you mean by catenation? Is a tendency of an element to form chains of identical atoms. Catenation is thus the property of elements by virtue of which atoms of the element link to each other in the form of chains of identical atoms. Example, a long chain or ring structure. ठीक है, catenation is maximum in carbon because it can form 4 bonds with 4 different atoms. Okay, since the value of carbon carbon bond energy is maximum, thus carbon undergoes self linking. कार्बन खुद अदर कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन्स के साथ भी बनाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा. ठीक, फॉर्म स्ट्रेट ब्रांच एंड क्लोज चेन्स. नाउ दिस वन इज द स्ट्रेट चेन, दीज आर द ब्रांच चेन्स, दीज आर द क्लोज चेन्स. ठीक, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. अब कार्बन इज टेट्रावेलेंट, सो इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ 4 अदर एटम्स एज वेल एज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, यहाँ भी देखो टोटल 4 ही बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4. इस केस में भी 1 2 3 एंड 4. ठीक, and this one is triple bond when 3 pairs of electron are shared between the same 2 atoms. ठीक, when 2 pairs of electrons are shared between the 2 atoms, then it is a double bond, and single bond is when 1 pair of or single pair of electron is shared between the 2 atoms. Form isomers. Now what do you mean by isomers? Isomers are the species having same molecular but different structural formula. Structural formula means arrangement of atoms in the structure. ठीक है, of the compound. Justification for separate branch of organic chemistry due to unique nature of carbon atoms, which include tetravalency, catenation, and leading to formation of isomers. Millions of organic compounds are known or synthesized. Almost 90% of all known compounds are organic. Now distinction between organic and inorganic compounds on basis of different properties. ठीक है, first is composition. Composition. Organic compounds contain few elements. Example is carbon, hydrogen are the main constituent. Apart from carbon and hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, chlorine और bromine may be the constituent atoms. Okay, बट एनी मेटल नहीं, कोई भी मेटल नहीं होगा बेटा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट. अगर मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाता है या मेटल डायरेक्टली बॉन्ड होता है विद कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन इट इज टर्म्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ओके, सो मेनली नॉन मेटल्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स. नाउ नेचर ऑफ कंपाउंड्स. नेचर ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवेलेंट. ठीक, नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू
बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. नाउ इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली द नेचर ऑफ बॉन्ड इज इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक. ठीक, इलेक्ट्रोवेलेंट मीन्स बाय कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटेलिक टू अ नॉन मेटेलिक एटम. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली कोवेलेंट है तो लो ही होगा. एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आयनिक कंपाउंड्स हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस इज वेरी लार्ज एंड वी हैव टू प्रोवाइड मोर हीट और टेम्परेचर इन ऑर्डर टू ओवरकम दोज फोर्सेस. ठीक है, ओवरकम दोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. सॉलिबिलिटी इन वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर मोस्टली नॉन पोलर. ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेग्रीगेशन नहीं होता है. एंड वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट. हेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल चलता है यहाँ. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर कैन डिसॉल्यूट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. वाटर पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं तो पोलर नॉन पोलर को नहीं डिसॉल्व करता है. ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड आयंस हैं तो पोलैरिटी तो ही है. तो वाटर में डेट इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होंगे. लाइक डिसॉल्व लाइक का ही चलेगा प्रिंसिपल. ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होंगे. ओके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन, कोई चार्ज सेग्रीगेशन नहीं है तो आयंस में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते हैं. हेंस दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंबस्टिबिलिटी एंड वोलेटिलिटी, कंबस्टिबल होते हैं और वोलेटाइल होते हैं. कंबस्टिबल मीन्स दीज कैन बर्न, वोलेटाइल मीन्स दीज कैन टर्न इनटू वेपर्स एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बोथ कंबस्टिबल एंड वोलेटाइल. वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, now inorganic compounds are non combustible and non volatile. They do not burn and do not turn into vapors at room temperature. Okay, catenation and isomerism is exhibited by organic compounds and not exhibited by inorganic compounds. ठीक है, classification of organic compounds. Organic compounds can further be classified into aliphatic open chain compounds and cyclic closed chain compounds. Now classification of organic compounds. Organic compounds can be classified into aliphatic or open chain compounds and cyclic or closed chain compounds. ठीक है, now aliphatic or open chain compounds can be saturated compounds or unsaturated compounds. Saturated means that contain only single bonds and hence they are unreactive. ठीक है, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं. एग्जाम्पल इज इथेन. इथेन इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मीन्स कार्बन इज singly bonded to other carbon and singly bonded to 3 other hydrogens as well, each carbon. Okay, now next is unsaturated. Unsaturated contain double or triple bond. Now examples of unsaturated hydrocarbons are alkenes and alkynes. Example of an alkene is this ethene. CH2 double bond CH2. Each carbon is bonded to the other carbon by 1 sigma and 1 pi bond. Okay, that is 1 double bond and singly bonded to 2 other hydrogen atoms. Okay, each carbon. And this is an example of alkyne, that is ethyne. This is an ethyne. Okay, each carbon is triply bonded to other carbon and singly bonded to hydrogen. ठीक है, triply bonded means there are 2 pi bonds and 1 sigma bond. ठीक है, now cyclic or closed chain compound. Cyclic or closed chain. Cyclic or closed chain are further classified into alicyclic and aromatic. Okay, alicyclic are just like aliphatic. ठीक है, aliphatic के ही closed chain analogues हैं. Okay, तो alicyclic बिहेव एज नॉन एरोमेटिक. नॉन एरोमेटिक मीन्स अभी एरोमेटिक बताएंगे तो उसका ही अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल इज साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटेन दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर. ठीक है, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 other carbon atoms through a single bond and 2 hydrogen atoms as well through single bonds only. ठीक है, एग्जाम्पल इज साइक्लोब्यूटेन. एलिसाइक्लिक. ठीक, एलिसाइक्लिक आर नॉन एरोमेटिक. ओके, नाउ एरोमेटिक मीन्स डैट हैव डबल एंड सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेट होते हैं. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं. कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम होता है. ओके, कॉन्जुगेट साइक्लिक सिस्टम मीन्स डबल बॉन्ड आर अल्टरनेटली प्रेजेंट इन द रिंग. ओके, एग्जाम्पल इज होमो एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. अब होमोसाइक्लिक एग्जाम्पल इज बेंजीन. अब देखो यहाँ पे दिस इज बेंजीन. ठीक है, दिस इज बेंजीन. एट ईच कॉर्नर ऑफ द रिंग 1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट. ईच कॉर्नर ऑफ द रिंग 1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट. टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं इस बेंजीन रिंग में. एंड देखो डबल बॉन्ड अल्टरनेट हैं. 1 डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. ठीक है, सिंगल बॉन्ड. तो दिस वन इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. इसको ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं. अंडरस्टूड बेटा. एंड एट ईच कॉर्नर ऑफ द रिंग 1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट. अब देखो हर कार्बन एटम की कितनी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है.
ईच कार्बन एटम इज मेकिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स 1 2 3 2 sigma and 1 pi bond ना 1 2 3 2 sigma and 1 pi bond. Each carbon atom is making three bonds with the other carbon atom. ठीक है, each carbon atom is making 3 bonds with the other carbon atom. से सिमिलरली इसकी भी देख लो, दिस 1 2 3, तो यानी 3 वैलेंसी सबकी सेटिस्फाइड हो चुकी हैं. तो अब एक जो वैलेंसी बची है वो किससे सेटिस्फाई हो जाएगी? हाइड्रोजन से, लाइक दिस. ठीक है. एंड हेट्रोसाइक्लिक मीन्स व्हेन a heteroatom is present in the ring. A heteroatom is part of the ring. Example is pyridine. यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पार्ट है रिंग का, hence it is a heterocyclic compound. When a heteroatom such as nitrogen, phosphorus, sulfur, oxygen etc. is a part of the ring. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट है रिंग का. यहाँ पे सब जगह कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, हेयर रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, तो देन इट इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड इट इज़ ऑल्सो एरोमेटिक एज it contain a conjugated system of single and double bonds. ठीक है. Now see here there are two compounds. Both are aromatic because both contains conjugated pi system. Both contains conjugated pi system means alternate single and double bonds. ठीक है, तो both are aromatic. अब which one is heterocyclic? Here NH2 is not a part of the ring. In case of aminobenzene this one is aminobenzene. आपको अभी nomenclature नहीं याद रखना है इसका. ठीक है, NH2 is not a part of the ring. This nitrogen atom is not the part of the ring. यहाँ पे कार्बन ही प्रेजेंट है. Okay, if no atom is mentioned at the corners then that means it is a carbon by default. Okay, तो आप कार्बन ही उसको assume करोगे. Understood? So this nitrogen or heteroatom is not a part of the ring, hence it is a homocyclic compound. And this one nitrogen is part of the ring, hence this pyridine is a heterocyclic compound. Okay, similarly this one, this is a homocyclic, दिस वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक एंड बोथ आर एरोमेटिक. यहाँ पे ये जो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हैं ये कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे. ठीक है. नाउ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर द सक्सेसिव मेंबर्स फॉलो अ रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न. स्ट्रक्चरल पैटर्न रेगुलर है. सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय अ CH2 और मिथाइलिन ग्रुप. ठीक है, यानी a homologous series is such a series where successive members follow a regular structural pattern and two consecutive members differ only by 14 atomic mass units. ठीक है, एक कार्बन का 12 एंड 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 एंड दैट मीन्स अ टोटल ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट का ही डिफरेंस होगा इन 2 consecutive members of the homologous series. बाकी सब कुछ सेम होगा. अगर फंक्शनल ग्रुप एक का जो OH है मान लो एल्कोहल है तो दूसरे का भी एल्कोहल होगा एंड ऑल मेंबर्स ऑफ दैट होमोलोगस सीरीज कंसिस्ट ऑफ OH एज द फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो. कॉम्पोजिशन सेम एलिमेंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप. जनरल फार्मूला सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा. केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज सेम फंक्शनल ग्रुप इन ईच मेंबर. अब देखो सेम फंक्शनल ग्रुप है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगी बिकॉज फंक्शनल ग्रुप ओनली डायरेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. ओके, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट डाउन अ सीरीज. अब डाउन अ सीरीज CH2 यूनिट एक एक बढ़ता जा रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट भी 14 एटॉमिक मास यूनिट इंक्रीज करता जाएगा. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बेटा किस पे डिपेंड करती हैं? मॉलिक्यूलर वेट पे. हैंस फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगी. ठीक है, ग्रेजुअल ग्रेडेशन सीन विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट. एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिफर करेंगी मेंबर्स की, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की. वाई? बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट इज इंक्रीजिंग डाउन द सीरीज. ठीक है. अब सिग्निफिकेंस इसका क्या यूज है? हेल्प इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेडिक्ट्स द प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सीरीज of the same homologous series. Homologous series of hydrocarbons. Hydrocarbons means the compounds that contain only hydrogen and carbon. ठीक है, hydrocarbons are the aliphatic open chain organic compounds containing carbon and hydrogen only. Molecular formula CXHY होता है where X and Y are whole numbers. Two main groups of hydrocarbons are there. Saturated hydrocarbons that contain only single bonds. Example is alkanes. ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन कार्बन एटम्स जॉइंड बाय डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स. एग्जांपल इज एल्कीन्स एंड एल्काइंस. सो एल्केन्स होमोलोगस सीरीज. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एल्केन होमोलोगस सीरीज इज CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, वर्ल्ड रूट देखो 1 कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट एंड 5 के लिए पेंट. अब जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है?
CnH2n+2 where n is the number of carbon atom for one carbon atom. अगर कार्बन आइटम 1 है तो H2n+2 हो जाएगा 4, यानी CH4 इज मीथेन. फॉर n इज इक्वल टू 2 C2H6 इथेन एंड सो ऑन. ठीक है, n इज इक्वल टू 3 C3H8 प्रोपेन, n इज इक्वल टू 4 C4H10 ब्यूटेन एंड n इज इक्वल टू 5 C5H12 पेंटेन. ओके, तो बेटा यू कैन राइट द नेम फ्रॉम द मॉलिकुलर फार्मूला एज वेल एज, अगर आपको ये पता हो कि ये एल्केन सीरीज का है, एल्केन होमोलोगस सीरीज का मेंबर है, तो इसका जनरल मॉलिकुलर फार्मूला आपको पता है. आपसे पूछा जाए फॉर एग्जांपल आई आस्क यू टू टेल द नेम एंड द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एन एल्केन कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स, तो आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 लिख के सॉल्व कर सकते हो बेटा. C3H2 इंटू 3 प्लस 2 डेट इज 8, तो C3H8 विल बी द मॉलिकुलर फार्मूला एंड नेम फॉर वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए प्रोप है एंड एल्केन इज द जनरल नेम, सो प्रोपेन हो जाएगा. ओके, मॉलिकुलर वेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. अंडरस्टूड. एंड नॉमेनक्लेचर अप टिल 5 कार्बन एटम्स इज देयर इन योर सिलेबस. ठीक है, एल्कीन्स, एल्कीन्स का जनरल फार्मूला इज CnH2n वेयर n अगेन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. n इज इक्वल टू 1 होता ही नहीं है, वाई? बिकॉज कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, नॉट विद द हाइड्रोजन एटम. तो एल्कीन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर हमेशा 2 कार्बन से स्टार्ट होगा. एल्कीन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर इज दिस इथीन C2H4. ठीक है, कार्बन कभी हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता है बिकॉज हाइड्रोजन वैलेंसी इज ऑलवेज 1. ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन कभी भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा. तो एल्कीन्स होमोलोगस सीरीज स्टार्ट्स विद 2 कार्बन एटम्स. ठीक है, एल्केन्स की 1 कार्बन से मीथेन से स्टार्ट हो रही है, बट एल्कीन की 2 कार्बन एटम से ही स्टार्ट होगी. ओके, दैट मीन्स C2H4 और इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज एल्कीन्स. ठीक है, एल्काइंस, now alkynes CnH2n-2 where n is the number of carbon atom, general formula is CnH2n-2 where n is the number of carbon atoms. ठीक है, and carbon do not form triple bond with hydrogen atom. तो कार्बन 2 कार्बन से ही स्टार्ट होता है. अगेन alkyne homologous series starts with 2 carbon atoms as well, means ethyne, this one will be the first member of the homologous series alkynes with general formula CnH2n-2 where n is the number of carbon atoms. Okay, तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज 2 कार्बन एटम से ही स्टार्ट होती हैं. C2H4 इज और इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज एल्कीन्स एंड दिस वन C2H2 that is इथाइन, इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज एल्काइंस. ओके, एंड मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज एल्केन्स. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं. मॉलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला. मॉलिकुलर फार्मूला क्या इंडिकेट करता है? एक्चुअल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, यानी हर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में. एग्जाम्पल इज इथेन, इथेन का C2H6 होता है मॉलिकुलर फार्मूला. इथीन का C2H4 मीन्स 2 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन इट्स मॉलिक्यूल. ओके, इथाइन का C2H2 मीन्स 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट देयर इन द मॉलिक्यूल. ओके, नाउ स्ट्रक्चरल फार्मूला इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स. कैसे अरेंज हैं एटम्स. ओके, किस तरह से अरेंज हैं, किस तरह की बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट इज मोर इन्फॉर्मेटिव फार्मूला एंड रिप्रेजेंटेड एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल और ब्रांच स्ट्रक्चरल. ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल और ब्रांच स्ट्रक्चरल. कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल क्या हो जाता है, जैसे हमने आज आप कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड शो कर दिया और H3 ऐसे ही लिख दिया. ठीक है, दिस वन CH3. अब एग्जाम्पल देखो, आप देख लो, C2H6 है. दिस वन इज मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ इथेन. ये मॉलिकुलर फार्मूला है. ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. तो 2 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं. ठीक है, दिस वन इज द मॉलिकुलर फार्मूला. अब इसी का हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा. इसका मतलब ये है ईच कार्बन इज bonded to other carbon through a single bond and 3 hydrogen atoms are attached to each carbon. ठीक है, this one is the condensed molecular formula. condensed structural formula. अब branched structural formula क्या हो जाएगा, जब हम हर हाइड्रोजन का भी बॉन्ड शो कर रहे हैं. ठीक है, this one is the branched structural formula, this one. ओके, अब देख लो, मान लिया हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया ब्यूटीन का. ठीक है, ब्यूटीन. सो ब्यूटीन है तो एल्कीन है. ठीक है, एल्कीन यानी कि C4 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे एल्कीन में, H2n होते हैं, तो 4 है तो 2 into 4 that is 8. C4H8 this one will be the molecular formula of butene.
ठीक है। वर्ड रूट ब्यूट यानी 4 कार्बन एटम्स। इन है तो एल्कीन है। एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CnH2n। सो n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम्स हैं तो H2n मीन्स H8। ओके, H8 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। अब हम इसके लिए कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्यूटीन लिखा हुआ है यानी 1 ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एज द फर्स्ट कार्बन ओनली, तो क्योंकि ब्यूट 2 इन या ब्यूट 3 इन नहीं है, ठीक है। सो 4 कार्बन एटम्स हो गए, ठीक। अब हम कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख रहे हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन फिलअप कर देंगे। इस कार्बन की 1, 2, 3 वैलेंसीज आर ऑलरेडी सेटिस्फाई, यहाँ पे H लगा देंगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसीज आर सेटिस्फाई तो H2 लगा देंगे। इस कार्बन की ओनली 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड, हेंस H3 लगा देंगे। सो दिस वन इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूट 1 इन वेयर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट कार्बन एटम। अब इसी के लिए हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने पहले कार्बन चेन बना ली, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है क्योंकि दिस वन इज ब्यूटीन। अब बाकी को फिल करेंगे किससे? हाइड्रोजन से। हेयर 2 हाइड्रोजन्स लगाने हैं, इस पे 1 लगाना है, इस पे 2 लगाने हैं एंड इस पे 3 लगाने हैं। ओके, सो दिस वन इज द ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूटीन। ओके, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन इज RH, दिस वन RH, ठीक है। तो मीथेन के लिए हो जाएगा CH3H, दिस वन इज मीथेन। अब जब H हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप बन जाता है। H हटा के हम H को किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एल्काइल ग्रुप। तो CH3 हो जाएगा, H हटा दिया हमने, मीथेन का CH4 का H हटा दिया तो CH3 हो गया, तो दिस वन इज मिथाइल, ठीक है। ऐसे C2H6 इज इथेन, C2H6 का एक H हटा दो तो हो जाएगा C2H5, ये हो जाएगा इथाइल। ओके, नाउ अगेन C3H8 इज प्रोपेन, C3H8 का एक H हटा दो तो C3H7 इज प्रोपाइल, ठीक। फिर C4H10 इज ब्यूटेन, C4H10 का एक H हटा दो C4H9 इज ब्यूटाइल, ठीक। एंड C5H12 इज पेंटेन, तो इसका एक H हटा दो C5H11 इज पेंटाइल। तो ये हैं एल्काइल ग्रुप्स, इनको एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक जो हाइड्रोजन है उसको हटा के हम कोई और फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं, ठीक है। डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? एन एटम, रेडिकल और बॉन्ड विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कन्फर्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू इट, दैट मीन्स दैट डायरेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप इज द वन दैट डायरेक्ट्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। अगर एल्कोहल मान लो OH ग्रुप लगा दिया तो हर बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड, हर उस होमोलोगस सीरीज का ऑर्गेनिक कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करेगा? जैसे दिस वन इज मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल, ठीक है। दिस वन इज द मिथाइल ग्रुप, OH इज द एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अब चाहे जितने भी बेटा हम CH2 ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करते जाएं, हर मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज विल बिहेव एज एल्कोहल, ठीक है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज वो एल्कोहल की ही शो करेगा। तो एल्कोहल हेयर इज डायरेक्टिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, हेंस इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये देखो C2H5OH, हमने एक मिथाइलिन बढ़ा दिया, CH3 में CH2 और ऐड कर दो, C2H5OH, फिर C3H7OH। ओके, तो ऐसे CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करते करते हमारे नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा हमें होमोलोगस सीरीज का। और ये सारे मेंबर्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेम होमोलोगस सीरीज, दैट इज एल्कोहल। एंड हेयर एल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स इट इज डायरेक्टिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, दैट इज एल्कोहल। ओके, नाउ अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में हैं बेटा? हाइड्रोक्सिल, दैट इज एल्कोहल, एल्डिहाइडिक और CHO, ठीक है। जब हम क्या लगा रहे हैं? RH का H हटा के, एल्काइल ग्रुप का H हटा के हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? C डबल बॉन्ड OH, तो दिस वन इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दिस वन इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। अब मान लो हम यहाँ पे H की जगह लगा दिया OH, COOH, तो COOH अगर लग रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप्स आपके यही 3 हैं सिलेबस में, दैट इज ROH यानी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ हमने लगा दिया OH तो ये एल्कोहल बन गया। RCHO, दिस वन इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, एंड RCOOH दैट इज कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब बाकी एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स आपके कौन कौन से हैं? हेलाइड्स, हेलाइड्स हैं सारे। हेलाइड्स मीन्स फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड, तो ये सारे एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स काम करते हैं